Right, let me take you to Srinagar, where India's Prime Minister Narendra Modi is participating in an event titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre. Right, so you're getting these latest visuals from Srinagar, where Prime Minister Modi has landed on a two-day visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir. Remember, he will headline the Yoga Day celebrations in Srinagar on Friday morning local time. During this visit, the first of its kind in Prime Minister Modi's third term in power, and the first after the just concluded parliamentary election in India, the Prime Minister will lay the foundation stone and also inaugurate development projects, 84 of them in all, valued at more than $180 million. So if you're just tuning in, it is 15 minutes past 6 p.m. India time, and we're getting you these latest visuals from Srinagar in Jammu and Kashmir, where India's Prime Minister Modi has arrived, and he is currently participating in an event titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir. The event is being held at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre. So we stay on these visuals for now of the Prime Minister interacting with local artisans and entrepreneurs at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre. Remember, the Prime Minister is in Srinagar on his first visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir after assuming office for a third consecutive term. The Prime Minister will inaugurate and participate in a youth event and also lay the foundation stone of several development projects, including launching a competitiveness improvement in agriculture and allied sectors project. Not only that, the Prime Minister will hand over appointment letters to 2,000 youths for various government services. And on Friday, that is tomorrow, the Prime Minister will participate in an International Day of Yoga event in Srinagar. He will address a gathering on the occasion and take part in a common yoga protocol session. All right, if I can bring our viewers up to speed with our coverage here on DD India News Hour. For those of you who are tuning in right now, we're getting you the latest visuals of India's Prime Minister Narendra Modi visiting Srinagar in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. He's there on a two-day visit, and he will shortly be participating in an event titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre. On his agenda is the foundation stone laying and inauguration of at least 84 projects valued at more than $180 million.
All right, just to recap for the benefit of viewers tuning in on this special broadcast on DD India, we are getting you the latest visuals from Srinagar in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir, where India's Prime Minister Narendra Modi has arrived on a two-day visit. He will shortly be participating in an event titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir. And on Friday, he will headline a Yoga Day celebration in Srinagar. Remember, 21st June is celebrated as International Day of Yoga. The focus of his engagements in Jammu and Kashmir will clearly be on development works. As I mentioned before, he would be laying the foundation stone or inaugurating 84 projects worth more than $180 million. This, viewers, is, by the way, his first visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir after assuming office for a third term, and the first after the just concluded parliamentary election in India. The Prime Minister will shortly participate in a youth event and inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. He will launch a competitiveness improvement in agriculture and allied sectors project. He will also hand over appointment letters to 2,000 local youths for various government services. Right, we are getting you these visuals once again from Srinagar, the capital of the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir, where India's Prime Minister Mr. Narendra Modi is visiting on a two-day visit to inaugurate and lay the foundation stone of development projects in the Union Territory, as well as headlining Friday's Yoga Day celebrations to be held in Srinagar on the occasion of the 10th International Day of Yoga. So he'll be visiting Jammu and Kashmir on the 20th and 21st of June. He will lay the foundation stone and inaugurate 84 major developmental projects valued at more than 1,500 crore rupees. He will launch the Competitiveness Improvement in Agriculture and Allied Sectors project worth another 1,800 crore rupees. This is his first visit to Jammu and Kashmir in his third term and the first since the elections took place in India.
On your screens right now are the latest visuals that we're getting from Srinagar of India's Prime Minister Mr. Narendra Modi interacting with local entrepreneurs in Srinagar on the margins of a youth event titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir. Remember, he is on a 2-day visit to the Union Territory of Jammu and Kashmir. He will also inaugurate and lay the foundation stone of several development projects worth crores of rupees. In fact, to be very specific, he will inaugurate projects worth more than 1,500 crore rupees in Jammu and Kashmir, and also launch another agriculture and allied sectors project worth another 1,800 crore rupees. In all, he will be dealing with 84 major development projects in the Union Territory of Jammu and Kashmir. And as we stay on these visuals coming to us from Srinagar, let me also put this visit in its proper context for our viewers joining us from India and around the world. India's Prime Minister is in Srinagar in Jammu and Kashmir on the eve of the 10th International Day of Yoga. Remember, 21st of June every year is celebrated as the International Day of Yoga. And this year's theme is Yoga for Self and Society. That's the theme of the 10th International Day of Yoga 2024. The Prime Minister interacting with homegrown entrepreneurs, all from Jammu and Kashmir, dealing in various business initiatives, including agriculture and farm industry. He's interacting with the youths present at the venue ahead of his participation at the event at the Sher-e-Kashmir International Conference Center in Srinagar. Right, while we stay on these visuals for some more time, let me again recap for the benefit of viewers tuning in from around the world. The event, titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir, is a pivotal moment for the region, showcasing progress and providing inspiration to young achievers. On the occasion, the Prime Minister is inspecting stalls and interacting with young achievers of Jammu and Kashmir. Afterwards, he will lay the foundation stone and inaugurate 84 development projects valued at more than 1,500 crore rupees. The inaugurations will include projects related to road infrastructure, water supply schemes, and infrastructure in higher education. Additionally, the Prime Minister will lay the foundation stone for projects such as improvement of the Chenani Patnitop Nashri section, development of industrial estates, and construction of 6 government degree colleges. He will also launch the Competitiveness Improvement in Agriculture and Allied Sectors project worth another 1,800 crore rupees. This project will be implemented in 90 blocks across the 20 districts of Jammu and Kashmir and will have the project outreach
of 300,000 households covering 1.5 million beneficiaries. He will also distribute appointment letters, as I mentioned before, to more than 2,000 persons appointed in government service. The foundation stone laying and inauguration ceremony and the launch of these projects will empower the youth and upgrade the infrastructure in Jammu and Kashmir. Right, it's just after 6:30 p.m. India time. If you're just tuning in, you're watching a special edition of the DD India News Hour. We're getting the latest visuals of India's Prime Minister Narendra Modi interacting with young achievers in Jammu and Kashmir's Srinagar city on the eve of the 10th International Day of Yoga. He will shortly be taking part in an event titled Empowering Youth, Transforming Jammu and Kashmir. This is Prime Minister Modi's first visit to Jammu and Kashmir in his third consecutive term in office and the first after the just concluded parliamentary election in India. He has a busy schedule ahead of him. As I mentioned before, he will lay the foundation stone and inaugurate 84 development projects valued at more than 1,500 crore rupees. He will also be distributing appointment letters to more than 2,000 persons, all locals who have been appointed in government service. The foundation stone laying and inauguration of projects will go a long way in giving a fillip to empowerment of youth in Jammu and Kashmir and also upgrade the existing infrastructure available in the Indian Union territory. So what you're seeing on your screens right now is the Prime Minister inspecting stalls and interacting with young achievers of Jammu and Kashmir, all of them local homegrown entrepreneurs in various fields, and he will shortly be inaugurating and laying the foundation stone of 84 development projects in Jammu and Kashmir. So we're just standing by for the event to begin in Srinagar. As I mentioned, the Prime Minister would be taking part in a youth event and inaugurate the foundation stone and other development projects in Jammu and Kashmir. And on Friday, that is tomorrow, he will headline a Yoga Day event in Srinagar. 21st June every year is celebrated as the International Day of Yoga, and this year's edition will be the 10th in the series, and it will have the theme of yoga for self and society.
Let me again take a moment to recap for the benefit of viewers joining us from India and around the world. These are the latest visuals of India's Prime Minister, Mr. Narendra Modi, interacting with young achievers of Jammu and Kashmir. They're all local, homegrown entrepreneurs, and they are showcasing their products and produce alike for the Prime Minister, who is on a two-day visit to Jammu and Kashmir, his first in his third consecutive term in office, and also the first since the parliamentary election concluded in India. He will lay the foundation stone and also inaugurate projects worth more than 1,500 crore rupees. 84 projects in all would be either inaugurated or whose foundation stone would be laid by the Prime Minister. And these projects relate to road infrastructure, water supply schemes, and infrastructure in higher education as well. Additionally, he will lay the foundation stone for projects such as improvement of the Chenani Patnitop Nashri section, development of industrial estates, and construction of 6 government degree colleges. आज की ये शाम युवाओं के नाम। साथियों, विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तमाम छात्र और छात्राएं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर आसीन हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जादव प्रताप राव गणपत राव जी। हमारे हर दिल अजीज माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आग्रह है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे यहाँ का मशहूर कानीशाल और पेपर माशी दस्तकारी की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से स्वागत है और उनको कहा जाता है कि उद्बोधन का आपके लिए हम विनम्र निवेदन करते हैं, मंच पर आकर आप अपना उद्बोधन दें। माननीय उपराज्यपाल जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव राघव जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रशासन के मेरे सभी सहयोगी, विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं। आज के वैश्विक राजनीतिक परिवेश में मैं मानता हूं कि एक बड़ी घटना है। कोई सरकार अपने कार्यों और जनसेवा के आधार पर लगातार तीसरी बार चुन करके आवे, ये लगता है कि विश्व की एक अनोखी घटना है। यह करिश्मा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही करके दिखाया है। उन्हें जो अपार जनस्नेह, समर्थन और जनादेश मिला है वो अभूतपूर्व है और 6 दशक बाद भारतवर्ष में किसी सरकार की लगातार तीसरी बार वापसी हुई है।
मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी नए भारत की प्रेरक शक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण जनमानस की सेवा और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में समर्पित किया है। उनके त्याग, पुरुषार्थ और जम्मू कश्मीर से उनके लगाव के कारण ही इस यूनियन टेरिटरी में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर को अंधकार और सुरक्षा और निराशा के दलदल से निकालकर शांति, समृद्धि और विकास की ओर ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के चौमुखी और समावेशी विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, वंचित वर्गों का कल्याण, नौजवान, किसान तथा नारी शक्ति के एस्पिरेशंस को देश के एस्पिरेशंस के साथ जोड़ने के लिए संपूर्ण जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। अभी 3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर में सभा हुई थी। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था, वो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी घाटी के लोगों के दिलों में बसते हैं। इस वर्ष जम्मू और श्रीनगर के दौरे में उन्होंने 39,000 करोड़ की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था और इसके कारण जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मिसाल जली है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, इंपावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JNK, यह इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है, उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों और किसानों को बहुत बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 1500 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्ट्स, 1800 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट तथा 2000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर की सौगात अभी कुछ देर में मिलने वाली है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन हमारी युवा शक्ति के लिए विशेष रूप से ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों की पूर्ति हो रही है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान इनोवेशन, स्टार्टअप द्वारा अपने नए भाग्य की रचना कर रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक कीर्तिमान बनाया है। 42,000 लोगों को पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। ये योग्यता और पारदर्शिता के कारण सोपैया के इम्तियाज हों, कठुआ के दीवान चंद हों, बडगांव के अब्दुल रशीद हों या किश्तवाड़ के सतीश कुमार हों, उनके जैसे हजारों नौजवान जो कभी स्वप्न नहीं देखते थे कि हम जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाएंगे, वे आज अफसर बन करके हमारे प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि परिवर्तन के टूल्स हैं। प्रतिवर्ष लाखों नौजवान स्किल ट्रेनिंग पूरी करके विकसित भारत के महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। जो औद्योगिक निवेश हो रहा है, उससे भी हमें अनुमान है कि 4.5-5 लाख नौजवानों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा। सबसे प्रसन्नता की बात है कि आज जम्मू कश्मीर का युवा एग्रीकल्चर से दूरी नहीं बना रहा। मैं अभी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने MBA की है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़ करके होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनका लाभ उठाकर वो खुद तो रोजगार अपने लिए सृजित कर रहे हैं, साथ साथ अन्य नौजवानों के लिए भी रोजगार सृजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जम्मू कश्मीर के शैक्षणिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। अब न यहाँ पथराव होता है, न हड़ताल होती है, बल्कि पूरे वर्ष
स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले रहते हैं, जिससे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो बड़ी संख्या में आज हमारे युवा स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। जम्मू संभाग की पैरा आर्चर शीतल को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शीतल जैसे लाखों नौजवान आज आपके मार्गदर्शन में हौसले के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल गए हैं। आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति, युवा ऊर्जा पूरी ताकत से राष्ट्र के निर्माण के लिए तत्पर है। जिस प्रकार हमारे युवाओं ने बिजनेस, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स में नई क्रांति को जन्म दिया है, वह बदलते जम्मू कश्मीर के नए संकल्पों का प्रतीक है। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में युवा सशक्तिकरण और विकास के अनेक पहलुओं पर परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं, उसी को दर्शाती है ये लघु फिल्म। जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प से नारी, युवा, किसान और गरीब इन तमाम वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान, जम्मू कश्मीर ने रचा कीर्तिमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में सशक्त युवा, समृद्ध जम्मू कश्मीर की अवधारणा आज साकार हो रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 3 लाख और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 85,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मिशन यूथ, तेजस्विनी, पीएम स्वनिधि, एकीकृत डेयरी विकास और आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के केंद्रीय पैकेज को मंजूरी दी है। साल 2019 के बाद से उद्योग के क्षेत्र में 1.17 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जहां कुछ साल पहले पर्यटकों की संख्या मात्र 1 करोड़ 60 लाख थी, अब ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख को पार कर चुकी है। पर्यटन में इस उछाल ने न सिर्फ स्थानीय व्यवसायों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। योग्यता से रोजगार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एमबीबीएस, नर्सिंग आदि में सीटें 1,700 से बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई हैं। उच्च शिक्षा में विस्तार करते हुए 16,500 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। शाम ढलते ही जिंदगी जहां थम जाया करती थी, उसी जम्मू कश्मीर में अब ये एक नई सुबह का आगाज है। जम्मू कश्मीर को समृद्ध बनाने की ये यात्रा निरंतर जारी है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 84 योजनाओं का अनावरण और लोकार्पण किया जा रहा है। कृषि के क्षेत्र में
आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कंपेटिटिवनेस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोजेक्ट JKCIP के शुभारंभ के साथ एक परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक पहल का आगाज होने जा रहा है। 1800 करोड़ के निवेश के साथ इस परियोजना के तहत 3 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। 2700 यूथ क्लब्स, 800 भेड़ बकरी यूनिट्स और 22 मिल्क कलेक्शन यूनिट्स भी बनाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर से लेकर कृषि के बहुआयामी स्तरों पे विकास कार्य किए जाने की योजना है, जिससे 35,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और साथ ही जरूरतमंद संविधायों की मदद के लिए 22 करोड़ की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें MA स्टेडियम जम्मू और श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम के अलावा बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल भी शामिल हैं। इसके अलावा 100 खेलो इंडिया केंद्रों को भी मंजूरी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए 4,500 एथलीट्स को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो विभिन्न मंचों पर पदक हासिल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ा रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जम्मू कश्मीर की 1500 करोड़ की लागत से बनी 84 परियोजनाओं का आज के इस समारोह में उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से 1800 करोड़ रुपए का एक और मेगा प्रोजेक्ट JKCIP जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इन अहम परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास अपने करकमलों से रिमोट द्वारा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आज 2000 युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। इनका चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर किया गया है। इनमें से श्रीनगर की शमसुनिसा की नियुक्ति पंचायत सेक्रेटरी के रूप में हुई है। आप मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र हासिल करें। अब मंच पर आमंत्रित हैं बड़गाम के अब्दुल वासिद भट्ट, जिनकी नियुक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में हुई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 2000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का संदेश पहुंचाया जा चुका है, वो भी सफलतापूर्वक। अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जुड़े मेरे युवा साथी, अन्य सभी भाई और बहन, साथियों, आज सुबह जब मैं
दिल्ली से श्रीनगर के लिए आने की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था और मैं सोचता था कि आज इतना उत्साह उमंग मेरे मन में क्यों उमड़ रहा है। तो मुझे 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान गया। वैसे एक तीसरी वजह भी है, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक यहाँ रह करके काम किया है, तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचित हूँ, अलग अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो यादें ताजे होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम, और दूसरा लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। साथियों, मैं अभी पिछले सप्ताह इटली में G7 की बैठक में शामिल होकर के आया हूं, और जैसा मनोज जी ने बताया, 3 बार किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज भारत के नागरिकों का जो मिजाज है, ये हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन कसौटियों पर परखने के बाद तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है। वो सोशल मीडिया से नहीं चलता है, वो भाषण से नहीं होता है। और ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास, और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है,
होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी, वो 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में
इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है। संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं, कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी। जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई, बड़े गौरवगान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो
हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद है जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ। वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल, जैसा अभी मनोज जी ने बताया, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है। साथियों, मैं दिन रात यही करता रहता हूं, मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं। और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से, समर्पण भाव से जुट रहा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए हम सब ने मिलकर के काम करना है। केंद्र सरकार से पैसे पहले भी आते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई पाई आपकी भलाई के लिए खर्च होती है। जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है, उसी काम के लिए वो पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आए, ये हम पक्का करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। साथियों, थोड़ी देर पहले ही यहां जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। खेती और इससे जुड़े सेक्टर के लिए भी 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां राज्य प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि वो
सरकारी नौकरियों में भी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं। बीते 5 सालों में करीब 40,000 सरकारी भर्तियां की गई है। अभी करीब 2,000 नौजवानों को तो इस कार्यक्रम में ही एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है। कश्मीर में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के निवेश से भी स्थानीय युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां बन रही है। भाई और बहनों, रोड और रेल कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर बिजली पानी, हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। जम्मू कश्मीर में नए नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। कश्मीर घाटी रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़ रही है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखकर तो हर भारतवासी गर्व से भर उठता है। नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी को पहली बार बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप्स, सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। और मैं अभी ऊपर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े नौजवानों से मिलकर के आया। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं उनको इतना सुनना चाहता था, उनके पास इतना कुछ कहने को था। इनका आत्मविश्वास मेरे मन को बड़ा उत्साहित कर रहा था। और अच्छी पढ़ाई छोड़ करके, अच्छी कैरियर छोड़ करके अपने आप को स्टार्टअप में झोंक दिया है यहाँ के नौजवानों ने, और उन्होंने करके दिखाया। मुझे बता रहे कोई तो किसी ने 2 साल पहले चालू किया, किसी ने 3 साल पहले चालू किया, और आज एक नाम बना दिया है। और उसमें हर प्रकार के स्टार्टअप्स हैं। आयुर्वेद से जुड़े विषय हुए हैं, खान पान से जुड़े विषय हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए पराक्रम दिखते हैं, साइबर सिक्योरिटी की चर्चा नजर आ रही है, फैशन डिजाइन है, टूरिज्म को बल देने वाला होम स्टे की कल्पना है। यानी शायद इतने क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप हो सकते हैं, और मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान स्टार्टअप की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हो, ये देखने का बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। दोस्तों, मैं इन सब नौजवानों को बधाई देता हूं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बन रहा है। और मेरा मत है, जम्मू कश्मीर के पास स्पोर्ट्स की टैलेंट जो है ना, अद्भुत है जी। और मुझे पक्का विश्वास है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कोचिज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, नए नए खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल खेलों की दुनिया में जम्मू कश्मीर के बच्चों का नाम रोशन होगा। और जम्मू कश्मीर के बच्चे मेरे देश का नाम रोशन करके रहेंगे, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, यहां खेती से जुड़े सेक्टर में मुझे बताया गया करीब 70 स्टार्टअप्स बने हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का ही रिवॉल्यूशन मैं देखता हूं। और ये नई जनरेशन का एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का जो व्यू है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करने का उनका दृष्टिकोण है, ये वाकई बड़ा प्रेरणा देने वाला है। बीते कुछ सालों में ही यहां 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बने हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है जी। अगर पिछले आजादी के बाद के 50-60 साल देखे और ये 10 साल देखे, तो आपको आसमान जमीन का अंतर नजर आएगा।
पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ने से यहाँ के नौजवानों को नई स्किल सीखने का मौका मिला है। आज जम्मू कश्मीर में आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स बन रहा है, अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोकल लेवल पर स्किल्स भी तैयार की जा रही है। टूरिस्ट गाइड्स के लिए ऑनलाइन कोर्स हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना हो, ये सब काम आज कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत ज्यादा लाभ कश्मीर की बेटियों को मिल रहा है। सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को टूरिज्म, आईटी और दूसरी स्किल्स ट्रेनिंग देने का अभियान चला रही है। 2 दिन पहले ही देश में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज जम्मू कश्मीर में भी 1200 से ज्यादा बहनें कृषि सखी के रूप में काम कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी जम्मू कश्मीर की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पायलट बन रही है। मैंने कुछ महीनों पहले जब दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया था, तब जम्मू कश्मीर की ड्रोन दीदियां भी उसमें शामिल हुई थी। ये सारे प्रयास कश्मीर की महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ्य है। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहां करीब 100 खेलो इंडिया के 100 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर करीब 4,500 नौजवानों को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भारत की कैपिटल बनता जा रहा है। इसी फरवरी में ही यहां जो चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, उसमें देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे आयोजनों से भविष्य में यहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग, और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। एक बार फिर
आप सभी को इस अनेकविध नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद। Watching the live proceedings of India's Prime Minister Mr. Narendra Modi's address at the Sher-e-Kashmir International Convention Center in Srinagar, where he inaugurated and laid the foundation stone of 84 projects worth more than $180 million and another project related to agriculture worth more than $220 million. He also handed over 2,000 appointment letters to local youths on the occasion.